गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करिए बुलंद गज के आखिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। माज महला पंजवा। तू जल निध हम मीन तुम्हारे, तेरा नाम बूंद हम चातृक तिखहारे। तू जल निध हम मीन तुम्हारे, तेरा नाम बूंद हम चातृक तिखहारे। तुमरी आस प्यासा तुमरी, तुम ही संग मन लीना जियो। तुमरी आस प्यासा तुमरी, तुम ही संग मन लीना जियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पवित्र वचन पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज छतर चवर ताकत दे मालक आप परमेश्वर धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे उचारण किए हुए वचन जो आप जी ने सरवण किए। लड़ीवार कथा चल रही है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पवित्र अंग 100 उपर सुभाएमान शब्द सतगुरु नाम की महिमा दस रहे सी पिछले कई दिनों तो। ते जिसनों फिर नाम की चेटक लग जाती है, जो नाम जपना शुरू कर दिंदा है, नाम जपण की जिसनों आदत बन जाती है, तो उस तो बाद उसके अंदर मिलन के लिए विराग पैदा हुंदा है। ते विराग जिहड़ा है वो जीव नूं परमेश्वर तक लैके जांदा। सतगुरु पातशाह जी कहंदे बिरहा बिरहा आखी है, बिरहा तू सुल्तान फरीदा जित तन बिरहो न उपजै सो तन जान मसान। जदों विराग पैदा हुंदा है तो फिर उसकी हालत कैसी हो जाती है, जिवें मच्छी की पानी तो बिना, जिवें पपीहे की सवांती बूंद तो बिना। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज अज राग माझ पवित्र अंग 100 उपर सुभाएमान शब्द राही बख्शिश करते हैं कि मनुख के अंदर परमेश्वर के नाल ऐसी प्रीति बन जावे जैसी मच्छी की पानी नाल है, जैसी पपीहे की सवांती बूंद नाल है। आरंभ करते हैं बचन माज महला पंजवा। तू जल निध हम मीन तुम्हारे। हे परमेश्वर तू पानी का सागर है। निध हुंदा खजाना, तो पानी का वड्डा खजाना सागर है, समुद्र है। जे तू पानी का समुद्र है, सागर है, तो मैं तेरी मच्छी हाँ। मच्छी 24 घंटे चत्तो पैर पानी च रहिंदी है, पर जे कोई एक मिनट भी उन्होंने पानी तो वाह कर देवे तो वह तड़फ जाती है और थोड़े समय विच ही प्राण त्याग दिंदी है। अगर पानी तक ना पहुँचे दोबारा
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਖੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀਵ ਹੈ ਇਹ ਤੜਫਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੁਨਰੀਆ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੁਮ ਘਰ ਆਵੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤ, ਤੁਮਰੇ ਦੋਖੀ ਹਰ ਆਪ ਨਿਵਾਰੇ, ਅਪਦਾ ਭਈ ਬਤੀਤ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚੱਲ। ਤੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਰਬਲ ਯਾਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਪਰਬਲ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਪਰਬਲ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੱਛੀ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬੂੰਦ ਹਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਤਿਖਾਰੇ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੂੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੂੰਦ ਦਾ, ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਪਪੀਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ, ਹੋਏ ਜਾਂਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਵਾਸਾ। ਹੈ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦੇ। ਬੂੰਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜੇ ਜੀ ਵਸਾਵੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨ ਆਵੈ। ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤਿਹਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਕਾਂਖਾ ਮਤਲਬ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮਸੰਦ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਆਏ। ਉਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਵਾਤੀ, ਮਾਝੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਵਾਤੀ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਕਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਆ ਪੱਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ
और उस इलाके की महान माता माता भागो, जिसका दूसरा नाम भाग परी है। प्यार विच असीं उन्हां नूं माई भागो कहने हाँ। माई भागो उन्हां दी अगवाई करदी होई उन्हां नूं गुरु साहब नाल मिलाउण वास्ते लैके आउंदी आ। माझे दे इलाके चों इसे रस्ते आउंदे आ, जैतो फरीदकोट कोटकपूरा ते मेरे प्रीतम जी आनंदपुर साहब छड्ड के माछीवाड़ा आलमगीर रायकोट आदि ये सारे इलाकों नूं तारदे होए इस इलाके पहुँचे आ, क्योंकि सतगुरां ने मुक्तसर की जंग हले करनी सी। सतगुरु भी कोटकपूरे नूं जा रहे हैं तो रस्ते दे विच एक पिंड आ गया रामेआणा। रामेआणे दोनों जत्थियां दा मिलाप होया ते जिहड़े माघजे दे लोग सी उन्हां विच कुछ अपने आप नूं सरकारी बंदे समझदे सी भी साडी औरंगे नाल सिद्धी आ, असीं नंबरदार हाँ, असीं चौधरी हाँ, साडी औरंगजेब मनदा असीं जाके मना लवांगे। उन्हां चौधरियां ने आपदी सियाणप वरतदियां होया कहा बई महाराज की खट्टिया जंग करके तुसीं असीं तुहाडी संधि करवा दिंने आ औरंगजेब नाल, तुसीं ये जंगां युद्धां नूं बंद करो। धन गुरु गोबिंद सिंह जी कहन लगे की गल बई तुसीं गुरु बन के आए हो कि सिख बन के आए हो, समझण आए हो कि समझाउण आए हो? असीं तुहाडी ये गल नहीं मननी। तुसीं उदों कित्थे जदों पंजवें पातशाह शहीद होए उदों संधि कराउणी सी, नौवें पातशाह शहीद होए उदों संधि कराउणी सी। साडे छोटे साहिबजादे माता गुजर कौर उन्हां नूं शहीद कर दिता, उदों कित्थे तुसीं? तो उन्हां बंदियां चों कुछ हंकारी बंदियां ने, सारियां ने नहीं, 200-250 का जथा सी ओह, कुछ हंकारी बंदियां ने कहा फिर असीं सोनू गुरु नहीं मनते जे तुसीं साडी गल नहीं मनते। गुरु साहब कहते नहीं मानते तो लिख के दे दिओ, आ लो कागज लिखो इस ते भी तू साडा गुरु नहीं, असीं तेरे सिख नहीं। उत्ते लैन लिख दी एक, थल्ले कहते जो नहीं मानता सैन कर दिओ। तो जिहड़े हंकारी से उन्होंने सैन करते फटाफट। सतगुरां ने वो कागज लपेटिया तो खीसे च पाया, जिन्हों बेदावा कहते आ, को सतनाम श्री। और इन्हां माझे वालियां नूं छड्ड के तुर गए। वो खड़े वेखते रह गए। पातशाह का जथा रामेआण तो कोटकपूरे नूं हो गया तो इधर माई भागो कहन लगी ये तो बहुत काम खराब करता, होर भी बिगाड़ता, तो इसका लिख के दे दिता बेदावा, गुरु नूं जमा ही त्याग दिता। ये तो बहुत माड़ी गल हुई। मैं तो सोडे नाल हुण नहीं जाना, मैं तो इन्हां दे मगरे जाऊँगी, उत्थे जिथे भी जंग होए उत्थे लड़ के मरूँगी। इहो जे जिउण नालों तो मरना चंगा। जद माता भागो अड़ गई तो जिहड़ा जथेदार सी भाई महा सिंह वो खड़ गया, कहना फिर मैं भी नहीं जाता। महा सिंह नूं वेख के 2 होर खड़ गए, 4 होर खड़ गए, 5 होर खड़ गए, इउं 40 सिंह रोक गए। को सतनाम सिंह। बाकी जिहड़े चौधरी हंकारी सीगे नंबरदार सी, वो पुट्ठे मुड़ गए जिन्हां ने सैन कीते सी। ये 40 सिख फिर सतगुरां दे मगर मगर चल पे भी हुण मौत भावें हो जावे पर गुरु दे कोलों ओह बेदावे वाला कागज पाड़ के दोबारा नाम की दात लैनी पैनी है। जे को गुर ते बेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त न पावै, पावै मुक्त न होर थ कोई, पुछो विवेकियां जाए अनेक जोनी भरमे आवे, बिन सतगुर मुक्त न पाए, फिर मुक्त पाए लाग चरनी, सतगुर शब्द सुनाए, कहे नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुक्त न पाए। हुण बेदावा हो गया, गुरु ने त्यागता, तो गुरु प्यारे हुण दोबारा ये मगर चले न। सतगुरां ने कोटकपूरे जंग करनी सी। कपूरे की कोठी कपूरे का हवेला चौधरी सी कोटकपूरे का, इस इलाके का। कोट हुंदा किला ते कपूरा बंदे का नाम है, को सतनाम सिंह। ਉਹਦਾ किला भाव की हवेली मंगी भी असी जंग करनी है, पिछे मुगल आ रहे हैं,
ਤੇ ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਉਦੋਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲ ਦੇ ਤੋਬਰੇ ਚੜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਥਾ ਅਸਤੂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਪੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਢਾਬਾਂ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਹੇ, ਮੀਂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ। ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਢਾਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਥਾ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਖਿਦਰਾਣੇ ਢਾਬ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਰੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਢਾਬ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੰਗ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਤਕੜਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜੰਗ ਚੱਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਮੁਗਲਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਧਿਆਈਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਢਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਨ ਦਾ ਥਾਉ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਕਰਾਂ 'ਤੇ, ਕਰੀੜਾਂ 'ਤੇ, ਝਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਲ੍ਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਏ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫੌਜ ਲੱਗਦਾ ਉਤਰੀ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਫੌਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੀਰਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਮੁਗਲਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਧਿਆਈ ਮਰਦੀ, ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ, ਪੁੱਠੀ ਮੁੜ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਢਾਬ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਥਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆ। ਵੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਭਾਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘ ਲੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ 5000 ਸਿੰਘ ਹੈ, 5000 ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ। ਇਹ ਮੇਰਾ 10,000 ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ 20,000 ਸਿੰਘ ਹੈ। ਐਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਲੱਭੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਸਲੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਲੰਗ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਂਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਹਿਕਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਵੱਲ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਜਰਨੈਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫੌਜ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਗੋਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਛਿੜਕਿਆ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਹਾਂ ਸਿਆ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ। ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਾਂ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ, ਬੋਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਮਾਤਲੋਕ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਵਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਬੋਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਅਣਕਵਾਰ ਝਿੜਕੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ ਬਹੁਤ ਪਿਤਾ ਗਲ ਲਾਵੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਹੰਝੂ ਡਿੱਗੇ ਆ। ਉਦਣੇ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਉਦਣੇ 2 ਹੰਝੂ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ।
कहते मंग की मंगदा? कहन लगे महाराज मैनू कुछ नहीं चाहिदा, बख्श लो, गंढ लो, टुट्टी गंढ लो महाराज साडी, असीं सोनू बेदावा लिख के दे बैठे हैं, पाड़ दिओ कित्थे है। आ जिहड़े मेरे नाल दे साथी शहीद हो गए ना, इन्हां नूं सचखंड चों आवाज़ां आउंदियां, तुसीं गुरु तो बेमुख हो, सानू कोई एंट्री नहीं, जाओ जिधर मर्जी जाओ। जे को गुर ते बेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे। तुसीं सचखंड नहीं आ सकते, सानू महाराज सचखंड दे तेरे दर दे गेट बंद हो गए। अज धन गुरु गोबिंद सिंह जी कहते टुट्टी हुट्टी महासिया छड्ड उन्हां नूं, तू आप दी गल कर, तैनूं की चाहिदा है। महासिंह कहता राज न चाहो मुक्त न चाहो मन प्रीत चरण कमलारे, तू जल निध हम मीन तुम्हारे, सानू होर कुछ नहीं चाहिदा। तू जे समुंदर है तो असी तेरी मच्छियां ते बिना सरदा नहीं, तू चाहिदा। वाकया ही सिख नूं गुरु तो बगैर कित्थे शांति आ सकती है। महासिंह कहन लग्या महाराज वो बेदावे वाला कागज कित्थे है, किरपा करके वो पाड़ दिओ, सानू दुबारे चरनी ला लो। तो पातशाह नूं भी पता सी कि एक दिन मेरे कोल ही आउणगे, जदों समा आवेगा तो फिर संभालने पैणगे। तो भाई साहब भाई महा सिंह के सामने खोल के वो कागज इदां कीता, देख उही आ, समार के देख ला। पढ़िया, हाँ जी उही है, सैना वाला कागज, इनू पाड़ दिओ किरपा कर। दुबारे गले ला। सतगुरां ने महा सिंह दियां अखां दे सामने वो बेदावे वाला कागज पाड़ के चकनाचूर करके हवा विच उड़ा दिता, ते नाले बचन कीते टुट्टी गंढी, सुन दोबारा जोड़ लिया। जे वो कागज ना पाड़दा रहिंदी दुनिया तक माझे वालियां नूं किन्नियां लाहनतां पैणीआं सी। धन है भाई महा सिंह माई भागो, ते वो सिंह जिन्हां ने खून डोल के ये अपना कलंक धोता, नहीं तो कलंक लग गया सीगा। तो इस करके सानू सतगुर की किन्नी लोड़ है, जिन्नी मच्छी नूं पानी दी। ते सतगुरु पातशाह ने जिस वेले वो बेदावे वाला कागज पाड़िया महा सिंह के सामने, ते महा सिंह ने दोने हथ बन्ने, नमस्कार कीती, कहन लग्या महाराज हुण मैनू शांति आ गई, मैं तेरे देश चले, आग्या बख्शो। इयों फतेह बुलाउंदा सिंह शरीर त्याग गया। फिर पातशाह जी ने सारे शहीद सिंघां नूं इकट्ठे किया। उन्हां 40 सिंघां चों 41वीं माई भागो, केवल माई भागो बची, उन्हां नूं नाल लै गए नंदेड़ साहब नूं। उस तो बाद इधर आए मालवे दे विच पातशाही दमदमा साहब आए, उन्हां 40 सिंघां दा उत्थे संस्कार करके उस खिदराने की ढाब नूं भी वर दे दिते। उसका नाम रख दिता मुक्तसर, जिहड़ा एक छप्पड़ सी उन्होंने सरोवर बना दिता, और सरोवर भी छोटा मोटा नहीं, मुक्ति देने वाला। खिदराने की ढाब नूं मुक्तसर का वर दिता, जिथे 40 सिंह बचन चों मुक्त होए, दोबारा गुरु के चरनी लगे। इस करके वो महा सिंह भी आही कहंदा सीगा, सानू कुछ नहीं चाहिदा, वो नाम दुबारे दिओ जिहड़ा असीं बेदावे करके छड़ चुके हैं। फिर सतगुर ने उन्होंने दोबारा वाहिगुरू मंत्र भी दिता, उन्हां सारियां रूहां नूं अपने गले भी लाया, तो माझे नूं बख्श दिता। वो हंकारी चौधरीआं कारण वड्डी वड्डी गलती हो गई सी, जिहड़ी महा सिंह होरिआं ने अपना खून डोल के धोती आ। कोई सतनाम सी। प्रीतम जी पंजवें पातशाह कह रहे हैं, मालका तू साडा समुंदर है, असी तेरी मच्छी हाँ,
ये निवरता भाव है। मच्छी निक्की जी है, समुद्र बहुत वड्डा है, पर मच्छी का समुद्र बिना सरदा नहीं। कहो सतनाम। इवें सिख दा गुरु बिना सरदा नहीं। जाऊगा तो जाओ कित्थे? बाबा जी बाणी च कहते तुध नो छोड़ जाइए प्रभ कह धर, तैनू छड्ड के किहड़ी धरती ते जाइए। आन ना बीआ तेरी समसर, तेरे वर्गा दूजा है ही नहीं गा। जे को गुर ते बेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त न पावे। इस करके आओ आपां भी वो बूंद मंगीए जिहड़ी पंजवें पातशाह गल करदे आ। तू जल नित हम मीन तुम्हारे, तेरा नाम बूंद हम चातृक तिखहारे। तेरा नाम ही साडी ओ कणी है, बूंद है जिहदे नाल साडियां जन्मां जन्मांतरां दीयां भटकना खत्म होणीਆਂ। इत्थे प्यासा पानी वाली नहीं है, इत्थे भटकण वाली प्यासा त्रिखा आशा तृष्णा विच भटकना। तेरे नाम की बूंद ने साडियां प्यासां खत्म करनियां। असी तेरे पपीहे हाँ, तू साडी बूंद है। तुमरी आस प्यासा तुमरी, तुम ही संग मन लीना जियो। जिवें महा सिंह कहंदा नहीं महाराज, राज न चाहो मुक्त न चाहो मन प्रीत चरण कमलारे। मेरा मन तेरे चरना नाल ही लीन है, मैनू हुण बख्श लो। ज्यों बारक पी खीर अगावे, जिवें छोटा बच्चा दुध पी के रजदा है, उहदे दंद भी नहीं है। ते परमेश्वर ने कितनी कृपा की, बच्चे दे जन्म तो पहला ही उहदे वास्ते खुराक तैयार करती माँ दे कोल ही, जिहड़ी बिना दंदां तो खाधी जा सके। और गुरु प्यारिओ, एक मैं तुहाडे सामने एक छोटी जी गल होर सांझी करां। कहंदे एक वारी जदों बाबा नानक जी सुमेर पर्वत ते गए ना, ते सिद्ध जान बुझ के ना बुढ़े होके बह गए, दंद निकल गए मूँह चों। कहंदे जी अज कोई भोजन खवाओ, असी बुढ़े बंदे आ, कोई ऐसा भोजन खाओ जिहड़ा सौखा खाधा जा सके। बाबा जी कहते बालिया ते हावल तैयार कर, आ कड़ाह प्रशाद। कड़ाह प्रशाद की देग तैयार की गई ते फड़ाती, भी खाओ बई, दंद लाउण की लोड़ नहीं पई, सीधे टप गया। इसे करके सारे प्रशादां तो महान प्रशाद कड़ाह प्रशाद है जो बाबे नानक जी ने तैयार किया। कहो सतनाम। इस प्रशाद नूं बच्चा भी खा सकता, बुढ़ा भी खा सकता। और अज तक डॉक्टर लोगों ने, साइंस ने यह गल क्लीयर करती है कि सब तो ज़्यादा ताकतवर पौष्टिक प्रशाद है जिहड़ा ये 3 मेल का प्रशाद है, जिहड़ा बाबे नानक के घर च बनिया। पहला सब तो पहला गुरु नानक के घर विच इहनूं प्रवानगी मिली। खैर मेरे प्रीतम जी कहते जिमें बच्चा दुध पी के रजदा महाराज, ज्यों बारक पी खीर अगावे। जिमें बच्चा दुध पी के खुश होंदा है, खीर दुध नूं कहंदे आ। ज्यों निर्धन धन देख सुख पावे। जिमें जिस गरीब दे कोल पैसा नहीं, जब उहदे कोल पैसा आउंदा वो खुश होंदा है। जिमें गरीब बंदा पैसे आउण ते खुश होंदा है। त्रिखा बंत जल पीवत ठंडा। जिमें प्यासे बंदे नूं चाण चक ठंडा पानी मिल जावे पीण नूं, हर संग त्यों हर संग ए मन भीना जियो। जिन्हां दे अंदर विराग पैदा हो गया, पंजवें पातशाह जी कहंदे उन्हां नूं इन्नी खुशी हुंदी आ मालक दे मिलन दी। कहो सतनाम श्री। शुरुआत की सी, तू जल नित हम मीन तुम्हारे। तू साडा सागर है, असी तेरी मच्छी हाँ। तू सागर है तो असी तेरी मच्छी हाँ। तू सवांती बूंद है तो मैं तेरा पपीहा हाँ। मेरा मन लोचा गुरदर्शन ताई, बिल्प करे चातरिक की न्याई। ये ओही पहरा चल रहा सारा। पहला शब्द यही सी पंजवें पातशाह जी का, जिथों शुरू किया पातशाह ने यह कथा अपना गुरबाणी रचनी। ये सारी लड़ी उसे दे नाल ही जुड़ी हुई है। प्रीतम जी कहते जिमें प्यासे बंदे नूं ठंडा पानी मिल जे पीण नूं,
त्यों हर संग ए मन भीना जीओ। इसे तरह ही मेरा मन तेरे चरना नाल भिजिया होया महाराज। ज्यों अंधियार है दीपक परगासा, जिवें हनेरे विच दीवा जगाइए ते लाइट हो जाती है, ते लाइट दे जगदियां ही हज़ारां साल का हनेरा एक मिनट विच भज जाता। तुसीं घर बंद करके दूर चले जाओ, साल 2 साल 4 साल 20 साल ना मुड़ो तो उत्थे हनेरा, उत्थे किरलियां सप ठूहे चूहे आदि पैदा हो जाते हैं। हनेरे विच ही सारे पैदा होंदे आ। ये सारे हनेरे च रहने वाले आ, चोर ठग भी। पर जदों ही तुसी 20 सालों बाद आके कमरे का गेट खोलिया तो पहला उत्थे लाइट जगाई तो उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ पै गया। ओए मालक आ गया, भज चलो, चूहे भज ले, किरलियां भज लियां। को सतनाम। इस तरह ही साडे हिरदे विच हज़ारां सालां दा हनेरा, कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बिरख जोयो। 1000 साल तो थोड़े आ, 84 लाख जून दे अरबां शरीर असी धारण किए ते छड्डे। कबीर साहब कहते ऐसे घर हम बहुत वसाए। भाव आपां शरीरां च बड़े, किते मझ, किते कुत्ता, किते सूर, किते बिल्ला, किते कुछ, किते कुछ, किते कुछ। आपां कई शरीरां च वड़दे वड़दे अज बंदे बने आ। ऐसे घर हम बहुत वसाए, तब हम राम गर्भ होए आए। अज कहंदे असीं राम दे घर भी जम्मे आ, जिवें तुसीं अमृत छक के गुरु गोबिंद सिंह दे घर भी जन्म लिया। को सतनाम। कबीर साहब कहंदे ऐसे घर हम बहुत वसाए, तब हम राम गर्भ होए आए। किन्ने जन्मां तो बाद उस भगत बने आ राम दे। बंदे बन के बनांगे ना। बाकी 84 लाख जून थल्ले आ बंदे तो। मानस को प्रभ दी वडियाई, सानू परमेश्वर ने वडियाई दिती आ। तुमरी किरपा ते मानुख देह पाई, ओदी किरपा नाल मनुख बनाया गया सानू। प्रीतम जी कहते ज्यों अंधियार है दीपक परगासा, जिमें ही दीवा जगाने आ हनेरा भज जाता है। हनेरे दे विच पैदा होने वाले जानवर भज जाते हैं। चोरी ठगी भी भज जाती है, चोर ठग भी भज जाते हैं। इस तरह ही प्रीतम का एक वचन है, उठ वंजो किल विखो पापो भज जो। क्यों? करता घरे आया, ये हिरदे का मालक शब्द अंदर आ गया। हुण तुहाडा इत्थे थां नहीं है। को सतनाम सी, तुसी भज जाओ। ज्यों अंधियार है दीपक परगासा, दीवा जगदियां हनेरा भज जाता। जिमें भरता चितवत पूरन आसा, जिमें कोई स्त्री बैठी पति नूं याद करी जाती होवे ते चान चक ओह बिना दसिया घरे आ जे, किन्नी खुशी हुंदी आ उसनूं। कोई सतनाम सी। भरता कहंदे पति नूं, जिमें कोई स्त्री अपने पति नूं याद करके खुश हुंदी आ, जां अचानक बाहरों देशों विदेशों फौजी कोई कहे भी अज मैं ना बिना दसे घरे जाऊँगा, पहला नहीं दसना मैं आ रहा, अचानक ही जाऊँगा, फिर कितनी खुशी हो। उस तरह ही क्योंकि याद हमेशा चलती है। जे पति दूर है तो इस्त्री जी सुहागन इस्त्री है, जी अपने पति नाल प्यार करने वाली है, वो 24 घंटे टक टक वो दिमाग में चलती है पति की याद की। इस तरह किसी माँ का पुत देशों विदेशों फौज विचों किधरे दूरों चानचक घरे आ जाए तो माँ को कितनी खुशी होंदी है। भरता चितवत पूरन आसा, जिमें पति नूं याद करदियां ही सारियां आसां पूरियां हो जांदियां। इस तरह ही मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा, जिमें किसी प्यारे नूं मिल के खुशी हुंदी है। कोई विछड़िया दोस्त मित्र कई सालों बाद मिल जाए, उन्होंने मिल के कितनी खुशी हुंदी है। मिल प्रीतम, प्रीतम कहते हैं प्यारा। कोई बहुत प्यारा मित्र जो मिल जाता कितना खुशी हुंदी है। त्यों हर रंग मन रंगीना जियो, इस तरह ही ये सिखा
जदों हरी दे रंग विच रंगिया गया ना, तैनूं इन्नियां खुशियां मिलणगीਆਂ। कहो सतनाम सी। लाल रंग तिसको लगा जिसकै वडभागा, मैला कदे ना होवे ही न लागै दागा। त्यों हर रंग मन रंगीना जियो। हुण पंजवें पातशाह असली गल करदे है। पिछे आपां शब्द रूप कीता सीगा ना, सिफत सलाहां तेरा हुक्म रजाई, कल शब्द कीता जिहड़ा आपां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ पढ़िया सीगा कि महाराज तैनूं तेरे संत भगत बड़े प्यारे है, बल्कि तू उन्हां दी जान है। ये पंजवें पातशाह ने परमेश्वर ते प्यारियां दी प्यार की गल कीती है। 10वें पातशाह जी ने खालसे दी ते आप दी गल कीती है। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हों करो निवास, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो प्राण को प्राण, खालसा मेरो मुख है अंगा। जब खालसा साबित सुर चढ़दी कला च होवे ते मानो गुरु साहब कहते मेरा ही चेहरा है। कहो सतनाम। खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हों साध साध संगा। जावला खालसा रहे नियारा, तावला तेज दियो में सारा। पर याद रखियो जावेगा है विपन्न की रीत, जदों ये भी वामनी कर्म कांडां च पै गया, मैं ना करो इनकी प्रतीत, फिर मेरा कुछ नहीं लगता। कहो सतनाम सी। इस तरह ही पंजवें पातशाह कहते महाराज अपने संत उद खरे प्यारे, तू संतन के प्राणा जियो। संत तैनूं बहुत प्यारे है ते तू भी संतां दी जिंद जान है। रविदास जी प्यार भी चाह के रब नूं कहंदे आ, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। तेरे च ते मेरे च किन्ना क फर्क है। जे तू समुंदर है तो मैं तेरी लहर हाँ, जे तू सोना है तो मैं तैथों बनी हुई मुंदरी हाँ। कड़ा हाँ, छाप हाँ, छला हाँ, हार हाँ, पर हाँ तो मैं सोने का ही ना, आत्मा परमात्मा की हुई है ना। जदों भन देंगे गहना तो बाकी का फिर की बचूगा? सोना तो बचूगा ना, बाकी सब कुछ खत्म हो जाऊगा, डिजाइन खत्म हो जाऊगा, खोट खत्म हो जाऊगा, सियाना जरूर बचूगा। सियाना नहीं मरदा कदे नहीं। इवें आत्मा नहीं मरदी, जब शरीर छड्ड जाने आत्मा परमात्मा हो जाती है। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। रविदास जी कहते तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। एक होर मान विच कहंदे आ, बड़ा मान है परमेश्वर के भगत जी नूं। जो पे हम ना पाप करंता, ठीक आ तू सानू पापी कहता, हो सकदा असीं पापी हो गए, पर एक गल जरूर है, जे मैं पापी ना हुंदा तो तैनूं पवित्र किहने कहना सीगा। सोने की अहमियत पित्तल के बराबर रख के बनती आ। जो पै हमना पाप करंता अह अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता। तैनों पतिता गंदियां नूं चंगे बनाने वाला किहने कहना सीगा। तेरी वडियाई भगतां करके ही आ। वाकिया उन्होंने भी पता है कि भगतां करके मेरी मशहूरी हुई है। मैनू भगतां ने जन्म दिता है, रब नूं भगतां ने जम्मिया। रब ने दुनिया जम्मी आ, पर रब नूं पैदा किया भगतां ने। ताइयों तो फिर वडियाई दिंदे आ, मेरी बांधी भगत छड़ावे, बांध है भगत ने छूटा मोहे। एक समय मोको कह बांधे, तौफन मोह पै जवाब ना होए। पातशाह पंजवें सतगुरु कहंदे महाराज तेरे संतां ने मेरे ते कृपा की है। और धन गुरु अर्जन देव जी इत्थे सब तो महान संत बाबा बुढ़ा जी नूं कह रहे हैं। भाई गुरदास जी ਜਿਹੜੇ उस वेले उतों लैके आए लाहौर तो, जिस वेले उन्हां विच इन्ना बराग पैदा हो गया सीगा। मेरा मन लोचा गुरदर्शन ताई, बिलप करे चातरक की न्याई। त्रिखा ना उतरे शांत ने आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जीओ। दर्शनां दी प्यास लगी सी ते बाबा बुढ़ा जी ने लिया के मिलाया सतगुरां दे नाल। फिर वो गल भी याद करते हैं हर वारी अपने जीवन में कहते संतन मोको हर मार्ग पाया। तेरे प्यारियां ने मैनू तेरा रास्ता दसिया। रब ने प्यारी रास्ता दसणगे ना। शुरुआत तो उस्ताद ही करेगा, गुरु करेगा, रब का प्यारा करेगा। ताइयों तो अरदास करते हैं सही प्यारियां मेल जिन्हें मिलिया तेरा नाम चित्ते आवे।
संतन मोको हर मार्ग पाया, साध कृपाल। तेरे प्यारे साधु मिलते दयाल होए, कृपाल होए। हर संग गिझाया, गिझाउणा हुंदा लाउणा। कई बारी महापुरुष कोई रब दे प्यारे, रब नाल जुड़े होया दी गल करदा मैं, वो किसी नूं जोड़न वास्ते कहंदे आ भी तू 40 दिन गुरुद्वारे जाई। ये गिझाउणा है, जिवें जवाक नूं मिठे दे नाल गिझा के स्कूल भेजते हैं, गां उत्थे मैडमां बच्चों को टॉफियां देंदियां, लै पुत्त टॉफी देवां। दूजे दिन बच्चा फिर स्कूले जाता, टॉफी खावांगे, क्योंकि बच्चे नूं मिठे नाल प्यार है। बाबे फरीद नूं ओहदी माँ ने मिठे नाल ही गिझाया, रब नाल जोड़िया। शुरुआत शक्कर बड़ी स्वाद लगी। भगत बाबा फरीद रोज़ नवाज करन लग्या। नवाज करदियां करदियां एक दिन अंदरला स्वाद आया, नाम का रस आया। जदों बुढ़ा होके फिर पिछली गल याद की, यार माँ ने शक्कर तो शुरू किया सी काम, पर आ जिहड़ा हुण मैं रस लै रही हाँ, ये तो शक्कर तो भी मिठा, ये तो सारे मिठियां तो मिठा है। शक्कर खंड निवात गुड़, शक्कर खंड निवात मिश्री, गुड़ माखियों शहद, मांझा अंब, दुध। शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो मांझा दुध, सभे वस्तु मिठियां। ठीक है, बहुत स्वाद है अपने थां ते, पर रब ना पुजन तुध, तेरे नाम का रास्ता सारियां तो स्वाद है। को सतनाम, तेरे प्यारियां ने कृपा की। साध कृपाल हर संग गिझाया, हर हमरा हम हर के दासे। बस साडा कोई नहीं, मच्छी का पानी है तो पानी मच्छी का है। को सतनाम। हाँ जी, मच्छी के पानी के प्यार च फर्क है कि मच्छी पानी वाल जाना चाहती है, पानी मच्छी वाल नहीं आउंदा गा। पर गुरु ते सिख दे विच फर्क नहीं है। जे सिख भी अड़िया फसिया होवे ते गुरु भी चल के पहुँचदा है। बाबे नानक दियां 4 उदासियां गुरु ते सिख दा प्यार ही है। को सतनाम सिंह आप चल के गए, जिथे जिथे गलतियां देखियां उन्होंने सही किया। इस करके महाराज हर हमरा हम हर के दासे, नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। जदों गुरु ने मैनू नाम की दात, शब्द की दात दी, जिवें दोबारा भाई महा सिंघां नूं, महा सिंह होरे साथियां नूं, उन्हां दे कंन विच गुरु ने दोबारा शब्द पाया, टुट्टी गंढी बख्श लए, तो सारे सारे माझा ही बख्शिया गया। को सतनाम। इवें जिवें पंजवें पातशाह जी कहंदे हरि साडा है, असीं हरि दे हां। इस निमाणे नानक पंजवें नानक गुरु अर्जन देव जी कहते मैनू गुरु ने सच का शब्द दिता, जद मेरा जीवन सफला हो गया, ऐसा विराग पैदा हो गया। इसे नाल मिलता होया शब्द जोड़ते हुए लड़ी नूं अगला शब्द पातशाह लिखते हैं, माज महला पंजवा, अमृत नाम सदा निर्मलिया। जो मैनू नाम मिलिया ना, मैं उन्होंने जजमेंट किया। तुसीं अंब लैन लगे, कहने हो नहीं जल खट्टे होणगे, बेचण वाला किन्नी तकड़ाई नाल कहंदा नहीं, खा के देख, कट के दिंदा माड़ा, खा के देख, तू खट्टा किवें कहता। नाम का भी स्वाद तो फिर चखना पैना, रोज़ नितनेम करांगे फिर ये नाम का स्वाद का पता लगू भी किन्ना क मिठा। को सतनाम श्री। अमृत नाम सदा निर्मलिया, सुखदाई दुख विडारन हरिया। ये निर्मल पवित्र नाम सुख देन वाला, दुखों नूं भुजाउण वाला। अवर साध चख सगले देखे, दूजे स्वादा नाल मिला के देख लियो नाम का स्वाद। मन हर सब ते मीठा जियो, फिर पता लगू ये सारियां तो मीठा। ये शब्द की विचार आप कल नूं सरवण करांगे। हुण समा समाप्ति ते है, बोलदियां नेकां अखर बाद घाट हो जाते। सिख संगतां दे सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लेना जी। समाप्ति करिए, बुलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।